Welcome to all of you. Today I am in front of you for having discussion over India's climate chapter number 8 class 6. I am very hopeful that you understood all the facts what we discussed yesterday. Today we will discuss about factors affecting the climate of India. If definitely we have to study about the India's climate, then definitely after having the discussion that the climate of India is divided into two segments, tropical segment and subtropical segment, then definitely it's our duty to understand that what are the factors on behalf the climate is going to be affected. So for that, in today's session we will discuss about that. So the first factor which plays an important role for their effect over the climate is none other than latitude. Latitude का है where latitude lies. Definitely मैंने कहा है कि there are two kinds of imaginary lines present over the globe or over the surface of the earth. First one like that, the spreading of these lines, and the second one the spreading of these lines. You can easily see it over the map. So latitude means I have to discuss about this line. I have to discuss about this line. It means east-west lines. In another word, we can say that we have to discuss about east-west line. So the first thing that on the behalf of that, I told it to you that the climate of India, tropical and subtropical, that was completely based upon the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer means 23.5 degree north, and Tropic of Capricorn means 23.5 degree south. So you can easily see that this one is the line, which is having 23.5 degree north, and due to that you can easily see that India lies from here to here. So we can easily say that this Tropic of Cancer divides India into two equal parts, almost two equal parts. This one is the fact, and due to this 23.5 degree north line, we can say that India is going to be divided into two sections, tropical section and subtropical section. And due to this line or the importance of this line, you can easily understand that on the behalf of this line, ये जो आपका क्षेत्र है इसमें आप बर्फबारी एक्सेसिव कोल्ड नहीं सुनते होंगे, जबकि इधर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो बर्फ ठंडा वगैरह समझते हैं. तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह जो 23.5 डिग्री लाइन है, यह कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इधर गर्मी का प्रभाव ज्यादा रहता है और इधर जैसे जैसे ऊपर की ओर उठते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की ओर, तो धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंज आते जाता है और ठंड का प्रभाव बढ़ता है. ये तो पहला चीज हुआ आपका, क्या चीज का? लैटिट्यूड का. पहला चीज क्या हुआ? लैटिट्यूड. दूसरा क्या है? एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई. अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन द फर्स्ट 2 लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर ईच 165 मीटर ऊपर, जमीन से जैसे जैसे सी लेवल से 165 डिग्री मीटर ऊपर जाते हैं तो वहाँ के तापमान में 1 डिग्री सी की कमी हो जाती है. और यही कारण है कि बिहार के तुलना में हिमाचल में तापमान कम होता है, हिमाचल की तुलना में जम्मू कश्मीर में तापमान कम होता है. So we can easily understand that this one thing is happening only due to increment in the sea level height. जैसे जैसे समुद्र के तल से हम ऊपर की ओर जाते हैं
तो तापमान में परिवर्तन होता जाता है, और वह जो आंकड़ा है वह 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सी, प्रत्येक 165 मीटर। मतलब अगर यह धरती का आपको एक तरह से स्ट्रक्चर है और यहाँ से यहाँ 330 मीटर की ऊंचाई है, तो 165 पे 1 डिग्री कमेगा, मतलब 330 का मतलब हो गया कि अगर यहाँ 22 डिग्री तापमान है तो यहाँ 20 डिग्री तापमान हो। सो दिस वन इज द फैक्ट व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। थर्ड वन सेगमेंट इज सराउंडिंग ऑफ सीज। ये मानचित्र को अगर आप देखते हैं तो बेहद ही सरलता के साथ समझा जा सकता है कि भारत जो है इधर, नीचे और इधर, ये तीन तरफ से समुद्र से आच्छादित है। इट इज कवर्ड बाय सी इन इट्स 3 ऑफ द साइड्स, तीनों तरफ से यह जल से आच्छादित है। एंड ड्यू टू दैट डेफिनेटली मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी will more in the coastal plain region area, and it will also affect our climate. Our climate means India's direction of mountain. भारत की जो विशेषता है, the importance of the physical structure of India is none other than presence of the mountain in the northern area. And why? I am giving you an example. Actually, local wind. The example of local wind is monsoon wind. मानसून की जो हवाएं होती है, मानसूनी विंड, मानसून विंड जो होता है वह कहाँ से उत्पन्न होता है? The first answer will be Bay of Bengal. Am I clear? You will say to me yes. यहाँ से ये उठा और भारत में प्रवेश करता है, और we know that monsoon wind is responsible for having the rain in India. मानसूनी हवाएं ही वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है हमारे देश में। अब ये उत्तर में हिमालय होने का कारण क्या होता है कि ये मानसूनी हवाएं, जो मानसून विंड है, दे विल कवर्ड अप इंडिया, दे विल स्ट्राइक विद द माउंटेन रेन एंड दैट विल कम बैक। तो या तो जाने में बरस गई या लौटते लौटते बरस जाती हैं। वी विल गेट कंप्लीट पोटेंशियल बाय देम, हम उनसे महत्तम लाभ बेनिफिट उठा पाते हैं। तो पहला तो हो गया कि भैया जो मानसून विंड है उसको जाने से रोक दिया गया, बहुत सही बात। दूसरा जो प्रमुख चीज है, या चीन के तरफ से, जो ठंडे प्रदेश के तरफ से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उसको भी रोकने का कौन काम करता है? यही नॉर्दर्न माउंटेन करता है। मतलब हमारे मानसून विंड को रोककर भारत के तरफ रखने का काम पॉजिटिव एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड this northern mountain range is also responsible for having the disturbance or objection over the flow of the cold wind which blows from the China. तो ये हमारे चाइना से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिसके कारण कि हमें एक उचित वातावरण मिलता है खेती, कृषि, एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, या कहें नॉन एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, whatever the work that will be supportive for us. And again, the moving air is called wind. A constant cool wind would make the air cooler and a hot wind make it warmer. अगर ठंडी हवाएं लगातार चलेंगी तो वातावरण ठंडा होगा, एटमॉस्फेयर कूल रहेगा, और अगर गर्म हवाओं का प्रवाह ज़्यादा देर होगा तो गर्मी जो है बरकरार रहेगी। Monsoon is also going to be considered as a seasonal wind which blows in a fixed direction in a particular season. सही बात है ना, मानसून विंड वर्षा के ही समय में आती है, ऐसा तो है नहीं कि जनवरी में आ जाती है या अक्टूबर में आ जाती है। इनका एक हवा के बहाव के कारण यह बंगाल की खाड़ी से भारत की तरफ पहुंचता है, और यह एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है कि वह इसी समय हवाओं की जो दिशा होती है, बहने की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वह हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठकर भारत की तरफ मूव करती हैं। नाउ the most important thing you have to keep it in your mind about the cycle of seasons. Basically in India we are considering 4 important seasons: winter season, summer season, advancing monsoon, retreating monsoon. मतलब जाड़ा है, गर्मी है, फिर एडवांसिंग मानसून, जो मानसून का अभी आप सुन रहे होंगे आगमन होता है, और फिर जो एक समय के बाद जो है मानसून लौटते वक्त भी जो है कुछ वर्षा करके जाती है, और फिर उसके बाद जाड़े का मौसम आ जाता है। सो वी कैन क्लासिफाई
the climate or the season in India into 4 types: winter, summer, advancing monsoon and retreating monsoon. Retreating means going back. मैंने आपको पहले भी बताया, फिर आपकी किताब के हिसाब से बता दे रहा हूँ. एडवांसिंग मानसून मतलब मानसून का जो आगमन के दौरान जो वर्षा होती है क्षेत्र में होते जाती है, और रिट्रीटिंग मानसून मतलब हिमालय से टकराने के बाद जब वो हवाएं वापस लौटती हैं तो भी कहीं कहीं वर्षा करते जाती है. एंड दैट टाइम पीरियड विल बी नोन एज रिट्रीटिंग मानसून टाइम पीरियड. थैंकफुल. Have a great day. In my next session, we will start discussion over